Hello, myself Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of the development of Indian Constitution. Well, students, so far we have discussed, many acts, various acts. We have discussed in our previous lectures, like we have discussed that Indian Government Act 1858. Then later we discussed the Indian Council Act 1861. We have also discussed the Indian Council Act 1892. We have also discussed what was the 1857 revolt. So we have got an idea what was it all about. Okay, objectives, contents, features, salient features, characteristics, causes we have gone through already. But in today's lecture, especially, I'll be discussing some important topic, which is the outcomes of Indian Council Act 1861. Students, should I say consequences or outcomes? It means that we are going to study कि what were the results या आप कह लीजिए कि उसके परिणाम क्या रहे जो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया. So topic going to be very much interesting, valuable, important. Many times you are asked many questions which are from, yeah, which are formed, which are constructed, especially from this particular topic. I request you all to please pay attention to my words. Also, if you think something is important there, please keep on making notes on that. And again, allow me to start today's session. अ, एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, एक आइडिया एक मैंने आपको दिया था या स्टडी जी कह लीजिएगा कि अभी भी आप कोई नए एक्ट को डिस्कस करते हैं तो उससे पहले आपको प्रीवियस एक्ट को अच्छे से भली भांति से यू मस्ट बी यार यू आर सपोज टू बी वेल वर्स्ड विद द प्रीवियस एक्ट. फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस और आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो यू आर सपोज टू नो दैट व्हाट वाज द एक्ट ऑफ 1861 ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट. If I say, or should I say, if you are going to discuss Indian Council Act 1861, so you are supposed to have an idea about the, Indian Government in 1858. And if I say we are going to discuss the Indian Government Act 1858, so you or we are supposed to have knowledge about the 1857 revolution. Or if you are going to discuss about the 1857 revolution, या क्रांति, so it means that we are supposed to have knowledge about the East India Company. So this way we keep on moving, you know uh, अहेड, या मैं कहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को करते हैं और बड़े सिंपल वे में हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है. क्योंकि फिर वही चीज कहूंगा कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी या एक एक्ट से दूसरा एक्ट जुड़ा हुआ है. इन्होंने केवल ब्रिटिश शासकों ने केवल रिफॉर्म्स किया था, थोड़े चेंजेस लेके आए थे, उसमें कुछ स्ट्रेटेजी को चेंज किया, बदला. और उसको मतलब I would say that they have made the things, yeah, they have enhanced the thing, so that they could face less hassles or obstacles. So this was very much important as far as I would say that consequences of Indian Council Act 1861. बट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सिंपल वे में समझते हैं इसको. और चीजों को प्लीज रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. अदरवाइज जो नॉलेज है, जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है, वो आपके लिए क्लियर नहीं हो पाएगा. So the Indian Council Act of 1861 was a significant piece of legislation enacted, okay, by the British Parliament to recognize the structure of the government in India. समझ गए? तो कहना ये चाह रहा है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एनेक्टेड. सीधी सी बात मैं यहाँ पर सिंपल वे में ये करूंगा कि फॉर एग्जांपल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करें, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पर हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हो, प्रांतीय केंद्र स्तर पर जो विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, उसको बहुत उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट था, या इट वाज ए मेजरेबल स्टेप, और या मैं कहूँ कि बहुत बड़ा कदम था जो कि या विच हैज बीन टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, एंड इट वाज टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया. बेसिकली वो ये देखना चाहते थे कि वो भारत में जो विशेष एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन हो रहा है, उसको थोड़ा सा यू नो रिस्ट्रक्चर किया जाए, ताकि चीजें और सी फीजेबल हो पाए, उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो पाए. इट शुड बी, देयर शुड बी स्मूथ फंक्शनिंग काइंड ऑफ थिंग. हालांकि फिर वही चीज कहूंगा कि जब उन्होंने जो 1857 के जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे, 1857 की जो महान क्रांति रही, उसके जो परिणाम रहे, उन्होंने अंग्रेजों ने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत लर्न किया. दे वर आल्सो गॉन थ्रू दोस लूप होल्स जो उनको लगा कि वो नहीं होने चाहिए थे.
और कहाँ ऐसी गलती रही कि पूरे भारतीय जनता एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह किया, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था भारतीय इतिहास में। हालांकि फिर वही चीज कहूंगा कि जो भारतीय थे वो सफल नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उसने अंग्रेज सरकार की या ब्रिटिश सरकार की जड़ें तक हिला दी थी। तो फिर 1858 के एक्ट लेकर आए, उसके बाद वो 1861 का एक्ट लेकर आए। और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा स्पेशली जो 1861 का एक्ट है या 1892 का जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इनमें उन्होंने बेसिकली भारतीयों को ये रियलाइज करवाने की कोशिश करी या उन्हें ये एहसास करवाने की कोशिश करी कि जो ब्रिटिश है उनके साथ है, दे हैव नॉट बीन डिस्कार्डेड, उनको अलग थलग नहीं किए गए हैं। क्योंकि फिर वही चीज कहूंगा कि भारतीयों को कहीं ना कहीं लगा था ये ब्रिटिश सरकार ने उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, उनको साथ में लेके वो चलते नहीं है, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना वो अपनी बात रख सकते हैं, ना फिर सजेशन को कोई इन्वॉल्व करना चाहता है अपने डिसीजन मेकिंग पावर में। और सर्वे सर्वा ब्रिटिश है, तो वो केवल शासन कर रहे हैं देश में। तो इस तरह की जो फीलिंग्स पाइल अप होती चली गई और अल्टीमेटली लेड टू 1857 रिवोल्ट। तो अंग्रेज और ब्रिटिश जो है अब ऐसा नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो 1861 का एक्ट लेकर आए थे, और बाद में 1892 का एक्ट लेकर आए। और उन्हें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। विधान परिषद को, यानी कि लोकल स्तर पे बात करूं, विधान परिषद या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, विस्तृत किया, एस्टैब्लिश किया, केवल इसलिए ताकि जो आम जनता है उनकी सहभागीदारी को या उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। और ऐसा इसलिए था कि वो ये सोचते थे, या ऐसी फीलिंग आम जनता के बीच में लाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासक उनको साथ में लेकर चल रहा है, कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। बट वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनकी मंशा थी हमारे ऊपर रूल करना और अपने मंसूबों को पूर्ति करना। हालांकि फिर वही चीज कहूंगा कि वो आए तो भारत में केवल व्यापारिक दृष्टि से व्यापार करने आए थे, बट यहाँ के रिसोर्सेस, और जैसे कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, इन सब में उनका इतना लालच। और एक सबसे बड़ी बात वो ये समझ चुके थे कि भारतीयों को तो बड़ी आसानी से बहकाया फुसलाया जा सकता है, और उनका फायदा उठाया जा सकता है, और डिवाइड करो, रूल करो, ये सब नीति तो आप जानते ही हैं। वो पहले से इस चीज में बहुत ज्यादा स्टूड थे। Now I'll discuss about the consequences of 1861 या Indian Council Act 1861. Please go through all the contents carefully. First one is creation of legislative councils. पहली बार अगर आपसे कोई क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, whenever anyone ask you कि ऐसा कब हुआ या किस एक्ट के अंतर्गत हुआ कि जब ब्रिटिश शासकों ने पहली बार यू नो ये प्रांतीय विधान परिषदों या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट किया और विस्तृत किया, तो आपका आंसर होना चाहिए वो 1861 का एक्ट था। हालांकि एक बात और बताना चाहूंगा, इसके बाद जो 1892 का वो एक्ट लेकर आए, इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आए, उसमें उन्होंने इसको थोड़ा सा और विस्तृत किया, एक्सटेंडेड किया। और जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेशली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी संख्या बढ़ाई। और ओवरऑल अगर बात करूं 40% से भागीदारी या प्रतिशत या 40% या 40% निर्धारित किया गया कि उसमें जो है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं होंगे और पूरे भारत की जनता को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आप आई हैव जस्ट ट्राई टू मेक द डिफरेंस बिटवीन 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट एंड 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, के दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, देखते हैं चलिए। द एक्ट एस्टैब्लिश्ड legislative councils for different provinces in India. It introduced the concept of legislative councils at the central and provincial levels, which included the addition of Indian members. देखिए वही बात है, यहाँ पर केवल स्थापना की बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, और एक्सटेंशन की बात या विस्तृत करने की बात हम कर रहे हैं 1892 1892 के एक्ट में। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पर ओनली दीज लाइन सेज कि द एक्ट एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का था, इसने प्रांतीय स्तर पर यानी कि सेंट्रल सॉरी प्रोविंशियल और केंद्रीय यानी कि सेंट्रल स्तर पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टैब्लिश किया। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स व्हिच इंक्लूडेड द एडिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। सीधी सी बात है, कुछ इंडियन मेंबर्स थे, हालांकि उनकी संख्या बाद वाले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में बढ़ाई गई थी, लेकिन यहाँ पर भी नॉन ऑफिशियल्स या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया गया था, जस्ट टू क्रिएट द फीलिंग अमंग द इंडियन सिटीजन्स कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ में। बट इट वाज नॉट लाइक दैट, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन इज इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, so the second heading also talks about the outcomes of the Indian Council Act 1861, which says inclusion of Indians in the legislative process. So although limited in scope,
The act allowed for the inclusion of Indians in the legislative councils. This was a step towards recognizing the importance of Indian participation in governance, though it was still under tight British control. देखिए वही चीज बात हो रही है, केवल एक लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा देना इंक्लूड किया गया. दे ट्राइड टू क्रिएट इंक्लूसिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ठीक है, बट वो बहुत इट वाज नॉट सफिशिएंट, बहुत लिमिटेड स्कोप में था, बहुत लिमिटेड सेंस में था. ठीक है, और स्टिल मैं फिर वही चीज को जैसे मैं आपको बताता भी रहता था कि दो दे हैव इंक्लूडेड द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, बट चलती उन्हीं की थी. स्पेशल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता था. ठीक है, केवल खाना पूर्ति के लिए कि वी हैव गॉट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, just to create the message among the citizens कि British are also in favor of Indians, but it was not like that. तो ये चीजें हुई, इंक्लूड किया गया. थोड़ा सा ये कहने के सोच रहे जो आउटकम्स की हम स्पेशली बात कर रहे हैं. और देखिए हमें यहाँ उस सेंस में नहीं जाना है कि इसकी कुछ नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है. हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को, थोड़ा सा टॉपिक हट के भी मैं डिस्कशन करता हूँ ताकि आपको नॉलेज अच्छी हो और साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो. आप क्वेश्चन अगर बने ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से भी उसको आंसर कर सके. ठीक है, अब इंक्लूजिंग इंक्लूजन की बात हुई है, इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस. बट फिर वो चीज कह रहा हूँ कि चलती या सर्वे सर्वा या अबव ऑल जो थे वो ब्रिटिश शासक ही थे. ये तो केवल एक खाना पूर्ति थी, केवल हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात है. हालांकि उनके को विचार विमर्श को, उनको कुछ सलाह वगैरह को वो दे नेवर वर्क ऑन दैट. बट ठीक है, एक थोड़ा सा ये हुआ कि दे आर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो ये फीलिंग हुई इंडियन भारतीय जनता के बीच में कि भारतीयों को भी थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का मौका मिल रहा है. नाउ रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स टू द काउंसिल्स. तो रेस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स टू द काउंसिल्स को समझेंगे. बेसिकली रिस्टोर किया गया लेजिस्लेटिव पावर्स टू द काउंसिल. द एक्ट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू फ्रेम लॉज which had been curtailed by the Charter Act of 1833. This allowed it for a more localized approach to lawmaking addressing issues specific to different regions. वो यहाँ पर यही बात कहना चाह रहा है कि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, उसमें बहुत सारी पावर को कर्टेल किया गया था. ठीक है, बहुत चीजें थी जो ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही थी. और totally the control was in the hand of the, I would say, British rulers. But as far as the consequences or outcome of this particular, I would say, act, which is Indian Council Act 1861, उसमें थोड़ा सा they tried to restore, या रिस्टोरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द काउंसिल्स. सो थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हम पावर देते हैं और साथ में कुछ जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है इनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं ताकि एक अच्छा मैसेज क्रिएट हो भारतीय आम जनता के बीच में. सो द एक्ट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. थोड़ा सा और उनकी पावर को बढ़ाया गया. लोकल स्तर पर मैं बात करूं, विधान परिषदों की पावर को बढ़ाया गया, या कि उन्हें थोड़ी सी स्ट्रांग बना गया ताकि टू फ्रेम लॉस विच हैड बीन कर्टेल्ड बाय द चार्टर एक्ट. हालांकि जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट था, मैं फिर वही चीज कहूंगा, उसमें कुछ भी इनके हाथ में, विधान जो परिषद थे इनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई कानून बनाने की पावर या कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाने का ऐसा कोई सीन नहीं था. लेकिन इस एक्ट के बाद थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ आप इस चीजों को थोड़ा सा और फिजिबल बनाते हैं. और यू नो जो हमारा प्रांतीय या फिर मैं कहूँ केंद्रीय, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इसको थोड़ी सी पावर देते हैं और अपने कार्यों में स्वतंत्रता देते हैं. ठीक है, तो दिस अलाउड फॉर ए मोर लोकलाइज्ड अप्रोच टू लॉ मेकिंग एड्रेसिंग इश्यूज स्पेसिफिक टू डिफरेंट रीजन्स. हालांकि फिर मैं चीज कर रहा हूँ, ब्रिटिश सरकार के हाथ में अभी भी सारी पावर्स थी. जो डिसीजन मेकिंग रोल है वो उन्हीं के हाथों में था. ठीक है, और जो भारतीय जनता है, जो भारतीय, जो कह लेंगे जो वो तो केवल एक उनके हाथ में कि हाँ भाई, कभी कभी होता है ना कि जैसे हम किसी भी कमेटी के या किसी भी ग्रुप के मेंबर होते हैं, बट एक्चुअली पावर तो ग्रुप किसी और लोगों के में होती है. हम तो केवल जस्ट फॉर द सेक दैट वी आर द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कमेटी या सोसाइटी, या शुड आई से द एनीथिंग. बट इसका मतलब आप जान लीजिएगा कि कहीं भी ये नहीं है कि उन्होंने ये देखा हो कि ब्रिटिश शासकों ने देखा हो कि हाँ हम मन से उनके साथ में, और हम मन से उनको साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं या उनके फेवर या वेलफेयर को सुनिश्चित एंश्योर कर रहे हैं. इट वाज नॉट लाइक दैट. स्टिल
उनका मंशा ये थी कि भारत में लॉन्ग टर्म वो रूल करे और इनका एक्सप्लॉइटेशन करते रहे, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे। दिस वाज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, ऑथोरिटी टू इशू ऑर्डिनेंस। ओके, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑथोरिटी टू इशू ऑर्डिनेंसेस। बेसिकली ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसमें पहली बात जान लीजिएगा कि ये तो बात आपको पता है ना कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था बच्चों, उसमें जो भारतीय गवर्नर जनरल, या मैं कहूँ कि जो इंडियन गवर्नर जनरल था, उसको वायसराय की पदवी दी गई, यानी कि अब उसको वायसराय के नाम से जाने लगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार आया बच्चों की, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत इंडियन का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की संज्ञा दी गई? तो वो था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैं फिर कहता हूँ कि जैसे मेरी की आदत है, कभी भी कोई चीज या कंसेप्ट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नो डाउट आपके साथ शेयर करता हूँ। डजेंट मैटर कि मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा विद इन द सेम सेशन और नॉट, बट द थिंग विच आई थिंक इम्पोर्टेंट एंड यू शुड नो, आई ऑलवेज शेयर। तो ये चीज ध्यान में रखेगा। मैनी टाइम्स मैंने स्टूडेंट्स कम अक्रॉस क्वेश्चंस लाइक कि ये जो एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है, उसमें इंडियन गवर्नर जनरल को क्या संज्ञा देगी? तो वॉइस रहेगी। अब हुआ क्या बेसिकली, इस ये जो 1861 का या इंडियन काउंसिल है जो एक्ट रहा, इसके अंतर्गत जो वायसराय था, सीधी सी बात है, वो यूज टू रिपोर्ट इंडियन क्राउन, सॉरी ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता था। ये बात तो आपको मालूम है ना कि बेसिकली ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव। वायसराय कौन था? ही यूज टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। Maharani Elizabeth, that was she was the, I would say, queen of I would say that British। तो ये जान लीजिएगा कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब जो इंडियन गवर्नर जनरल वायसराय की संज्ञा दी गई, कहना मैं चाह रहा हूँ कि वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के प्रति रेस्पॉन्सिबल था। ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव, ओके, ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और अब लेकिन थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं उसके जो कार्यशैली में बात करूं, जो बेसिकली एज फार एज some kind of law making, yeah, I would say that some policies or some rules and regulations are concerned, so he was free, or I would say that he has been uh, you know uh, 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 provided authority to make law या ordinance regarding the same, regarding any issues। कुछ स्पेशल केसों में उसे कानून बनाने का अधिकार था, आई मीन टू से दैट। So the act granted the Governor General the power to issue ordinances in case of emergency without the approval of the legislative councils. This provided the Governor General with significant control over the legislative processes। सीधी सी बात है बच्चों, एक बात जान लीजिएगा कि जो वायसराय था, अब उसको ये अथॉरिटी दी गई कि वो लोकल लेवल पर, यानी कि परिषद कह लीजिए या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लीजिए या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लीजिए, उसके अंतर्गत वायसराय कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑर्डिनेंसेस, यानी कि कुछ कानून या नियम वो लागू कर सकता था, उसके पास अथॉरिटी थी। तो ये भी एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम था एज फार एज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 is concerned। Now I'll move to the next, I would say that heading which talks about the outcome of the 1861 Indian Council Act। So strengthening of the Executive Council। तो strengthen करना या strengthening the of the Executive Council का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसे अभी कह सकते हो कि to make something strong। तो यहाँ पर जो बेसिकली स्ट्रेंथ किया जा रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जा रही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को, वेदर दोस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स आर प्रोविंशियल लेवल और आई वुड से द सेंट्रल लेवल। यहाँ पर चीजें चीजें मैं वही कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा पावर दी गई ताकि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके। ओके, सो द एक्ट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स of the Governor General and the governors of Madras and Bombay। This included the addition of non-official members, albeit still predominantly Europeans। नाउ आई वुड से दैट बेसिकली जो एक्ट था, उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में कुछ मेंबर्स को इंक्रीज किया। हालांकि फिर वही चीज कह रहा हूँ कि वो मेंबर की संख्या ज्यादा नहीं थी, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी संख्या भी लिमिटेड थी, लिमिटेड स्कोप था। हालांकि इसके बाद जो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसमें संख्या बढ़ा दी गई और टोटल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को 40% अलॉट किया गया कि 40% जो होगा इन्वॉल्वमेंट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का होगा। तो वो चीज बाद में की गई। हाँ, ये बात था। एक तो इस एक्ट के बाद जो आउटकम की मैं बात करूं, जो बेसिकली लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एस्टेब्लिशमेंट और प्लस
उनको स्ट्रेंथन करना, उनको ताकत देना, उनको स्ट्रांग बनाना और साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना और उनको एम्पावर करना। कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ब्रिटिश जो लोग हैं, वो इंडियन जो सिटीज़न्स हैं या भारतीय जनता के बीच में कुछ इस तरह की आई वुड से दैट मैसेज क्रिएट करना चाहते थे। उनके बीच ये एस्टिमेट करना चाहते थे इस मैसेज को कि ब्रिटिश जो है उनके साथ है। हालाँकि फिर वही चीज़ कहूँगा कि ब्रिटिश जो थे वो केवल रूल कर रहे थे, इंडिया में केवल शासन कर रहे थे। उनकी मंशा भारतीय जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कतई भी नहीं थी, कभी भी ऐसा इट वाज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है? इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। एक लालच देना, यू नो और अपने मंसूबों की पूर्ति करना। नाउ आई विल मूव टू द next one, yeah, next heading which talks about the I would say which also talks about the outcomes of the 1861 Indian Council Act, which says strengthening of the executive councils. Okay, we have discussed the same. Now, yeah, this one we have to discuss. The next heading, decentralization of administration. This is very much important as far as the outcome of 1861 outcome is concerned. The centralization of यू नो पावर कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, ठीक है। तो अब एक बार बताइए मुझे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हालांकि हमने इतनी थ्योरी पढ़ी है, यू नो पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत मैंने बहुत टाइम में ये वर्ड यूज करा, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का, या सेंट्रलाइजेशन या इसका अपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन या प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन। आपको पता होगा अगर हम तानाशाह या ऑटोक्रेसी काइंड ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो पावर का क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है। यानी कि पूरे सत्ता की जो बागडोर बागडोर है, जो पूरे सत्ता शासन जो भी चल रहा है उसकी उसकी बागडोर किसके हाथ में होती है? एक प्रमुख या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होती है। जैसे आप एग्जांपल इसको नॉर्थ कोरिया का। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, इन प्रेजेंट सिनेरियो वी टॉक अबाउट द यू नो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, तो वी टॉक अबाउट द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चाहे सेंट्रल लेवल की बात करूं, स्टेट लेवल की बात करूं या लोकल लेवल पर, लोकल बॉडीज या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात में करूं, तो कहीं भी ये नहीं है कि बिल्कुल केंद्र को बिल्कुल सब कुछ पावर दे दी गई है। स्टेट भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, इवन उसके अपने कार्य क्षेत्र है, अपनी कार्य प्रणाली है, वो स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकता है। थोड़ा सा ये बात जरूर है कि जो सेंट्रल है वो थोड़ा सा हैज गॉट एक्स्ट्रा एज। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। कुछ सिचुएशन में ऐसा जरूरी भी है, एक अंकुश एक बना रहता है, थोड़ा सा चीजें व्यवस्थित रूप से चलती हैं। तो अब क्या हुआ, 1861 का जो एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके बाद जो पावर या एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया। अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ कि पहले तो पूर्णतः है पूर्ण रूप से, या 1857 का जो संग्राम हुआ उस तक या उससे पहले केवल जो पावर थी एक्चुअल, दैट वाज इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। लेकिन इसकी बात मैं करूं, दिस टाइम व्हाट हैपेंड कि द एक्ट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बार ऐसा हुआ कि इनिशिएटिव या एक मिजरेबल स्टेप्स लिया गया कि पावर को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव को डिसेंट्रलाइज किया जाए, और भी इस चीज को डिस्पर्स किया जाए। चीजें एक की हाथ में ना होकर चीजें थोड़ी सी और भी लोगों के पास जाए। डिसीजन मेकिंग पावर या पॉलिसीज मेकिंग, निर्णय लेना या विचारों का समावेश करना, अपनी राय मशवरा करना, अपनी बातों को रखना, इन चीजों पर थोड़ा इम्फोसाइज किया गया आफ्टर 1861 Indian Council Act. So, giving more authority to the provinces, this move was indeed to make the administration more efficient and responsive to local needs. सीधी सी बात है, अंग्रेज ब्रिटिश ये पूरी स्ट्रेटेजी बना के बैठे थे, वो लोकल लेवल पे बहुत काम कर रहे थे। तो ये लोकल लेवल पर मैं बात करूं, प्रांतीय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात नहीं करूं, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर काम किया और चीजों को डिसेंट्रलाइज किया, ये दिखाने के लिए कि जो एक आम जनता है, जो भारतीय आम जो सिटीजन्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है ब्रिटिश सरकार में। ये केवल इसलिए किया गया था, बाकी इसके पीछे कोई और दूसरा रीजन नहीं था। केवल एक गुड वर्ड ऑफ माउथ, दे वांटेड टू क्रिएट गुड वर्ड ऑफ माउथ अमंग द इंडियन सिटीजन्स। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वो भारत की या भारतीयों की बहुत ज्यादा फेवर में थे। नाउ दिस इज द लास्ट वन as far as the foundation for subsequent reforms. So I'll go through these particular heading, uh, which says foundation for subsequent reforms. The Indian Council Act of 1861 laid the groundwork for future legislative reforms, such as the Indian Councils Acts of 1892 and 1909, या आप कह लीजिए 1909 में 99 it 1909 it initiated a gradual process of including
Indians in the governance of their country. ओके, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर फर्दर चेंजेस। तो क्या है कह रहा है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट कि द इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 था दैट लेड ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। अब मैंने आपको बड़े अच्छे से एक बात बताई थी, कभी भी कोई एक्ट आया, कभी भी कोई हमने एक्ट पढ़ा, या पहले कभी भी कोई भी चीज हम देखते हैं कि कुछ लूप होल्स अगर मैं प्रीवियस एक्ट्स में देखे, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे, या कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसमें हमें लगता है कि वी नीड टू वर्क ऑन दैट, तो हम उसको थोड़ा सा फ्यूचर के लिए रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, और यही हुआ था कि जब 1857 में उन्हें कुछ सबक मिला, कुछ ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई, जब उनके प्रति एकजुट हो गई भारतीय सरकार, तो उनको लगा कहीं ना कहीं ये गलती हमारी, हमारे कुछ लूप होल्स रहे। तो दे केम विद 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, एंड देन लेटर उन्होंने फिर से, उनको रियलाइजेशन हुआ, दे स्टडीड द एंटायर थिंग, उनको लगा कि कुछ लूप होल्स स्टिल दे आर, विद सम लूप होल्स, कुछ हमें भी अभी बहुत काम करना है, तो दे अगेन दे केम अप विद द न्यू एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इस तरीके से दे कीप ऑन रिफॉर्मिंग द थिंग, दे कीप ऑन एडिंग न्यू थिंग्स, चेंजिंग द थिंग्स और मेकिंग न्यू स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज, वो करते रहे। और सीधी सी बात अगर कुल मिलाकर नेक्स्ट में बोलूं कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसने ब्रिटिश सरकार को अपॉर्चुनिटी दी कि वो फ्यूचर के लिए फाउंडेशन तैयार कर सके, या फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चीजों को रिफॉर्म कर सके, ताकि जो गलतियां हैं वो दोहराई ना जाए। सो एट इट सेज दैट इट इनिशिएटेड अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर चेंजेस। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, थोड़ा धीमा था, लेकिन हाँ, बेसिकली जो ब्रिटिश सरकार में जो उनकी जो गवर्नेंस थी, उसमें जो इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट हो सके, उन्होंने एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करी, ताकि उनको लगे कि हाँ, ब्रिटिश सरकार उसके साथ में है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि जब ये 1885 के अंतर्गत जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको पता है 1885 के अंतर्गत 1885 में एओ ह्यूम द्वारा करी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने उसके अंदर जो उदारवादी नेता थे, जो बेसिकली लिबरल पॉलिटिशियंस लीडर्स थे, तो ये ब्रिटिश सरकार उनको बहुत साथ में लेकर चलती थी, जैसे दादा भाई नौरोजी या बैनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। वो इसलिए लेकर चलती थी कि उनको ये फीलिंग हो कि भाई, अगर हम इन लोगों को, या एलिट ग्रुप ऑफ पीपल, या एलिट जो एक समाज के जो एलिट थे, एलिट यू अंडरस्टैंड ना, एक प्रभु विशेष नॉलेज रखने वाले, सोसाइटी में स्पेशल स्टेटस रखने वाले, एक समाज में एक स्पेशल स्थान रखने वाले, या मॉनेटरी वाइज कहूँ इन्फ्लुएंस्ड काइंड ऑफ पीपल, और जो अपने आप को ज्यादा नॉलेजेबल समझते, पढ़ लिखे एडुकेट, तो इनको एलिट्स की संख्या दी गई। तो जब ब्रिटिश सरकार थी, ये जो क्या करती थी, इन एलिट को साथ में लेकर चली, और या उदारवादी नेता की मैं बात करूं, बिकॉज दे वर फ्रॉम द एलिट ग्रुप। तो उसमें क्या हुआ कि उनको लगा कि इस तरीके से भारतीयों को लगेगा कि भारत के लोगों को भी सम्मिलित किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार में। आप समझ रहे हो ना कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, या अंग्रेज भारतीय को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जबकि ऐसा था नहीं, केवल उनकी स्ट्रेटेजी केवल यही थी, आप कह लीजिएगा कि उनकी कूटनीति की यही थी, उनकी जो स्टूट काइंड ऑफ, आई वुड से दैट थॉट, वो यही था कि अगर हम कुछ एलिट के साथ काम करेंगे, तो ये अमंग ऑल द इंडियन सिटीजन ऐसा मैसेज क्रिएट होगा, डिसमिनेट होगा कि हाँ, हम भारतीय जनता के साथ हैं, यानी कि ब्रिटिश जो सरकार है वो भारतीय जनता के साथ है। जबकि फिर वही चीज हुआ, इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। So overall, the Indian Council Act of 1861 was a critical step towards modernizing the administrative framework of British India, and incorporating limited Indian participation in the legislative processes. However, it maintained substantial British control over the governance of India. ठीक है, शुरुआत थी, एक स्टेप था, इट वॉज ए मिजरेबल स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, चीजें उतनी सब्सटेंशियल नहीं थी, इंडियन के पास उतनी पावर नहीं थी, केवल दिखावे के लिए था, या उनके हाथ में लॉलीपॉप थमाया गया। अभी भी थोड़ी सी चीजें अच्छी हो रही थी, बेहतर हो रही थी, लेकिन स्टिल जो पावर थी, जो एक्चुअल पावर थी, दैट वाज इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश पीपल या ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो बस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे हम लोगों को, या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो चीजें वो कर रहे हैं वो उनके फेवर में कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहे थे ताकि बस 1857 की जैसे क्रांति, या जो स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए, ऐसी क्रांति दोबारा से ब्रिटिश के खिलाफ ना लड़ी जाए, जनता एकजुट ना हो, उनके मन में विचार ना आए कि उनको अलग थलग कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ ना कहीं वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता को, और अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे थे। और this was all about the today's session, which was on the outcomes of
Indian Council Act in 1861. I have gone through the entire, content and headings, and I tried myself in making the concept clear for you people. बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैंने पूरे आउटकम्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को आपके समक्ष रखा। देखिए, एक बात जान लीजिए, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी कोई एक्ट्स, कभी भी कोई आप, आगे हम बहुत ऐसे ऐसे कुछ कमिटीज की भी अध्ययन करेंगे, और साथ में कुछ जो भी कुछ मेजर मूवमेंट्स रहे उनका भी हम स्टडी करेंगे। तो हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होता है, प्लस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस को भी स्टडी करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ना केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं कि फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है। और थोड़ी नॉलेज भी एनहेंस होती है, और हमें ये भी पता लगता है कि जो नेक्स्ट में या अगला जो एक्ट आया वो क्यों आया, क्या कारण थे। तो वो भी आपको इसी चीज से पता चलता है कि व्हाट वर द आउटकम्स, या आई वुड से द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्ट्स और इवेंट्स, और आई वुड say आंदोलन. So thank you very much for being valuable part of this session, and I hope you would have enjoyed the entire session. The session, I think that it was a very important session, and no doubt, you would have paid attention towards my words, towards the contents which have been shared by me. Or please, आई वुड से दैट चीजों को रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चीजें ज्यादा बेटर हो सकेंगी आपके लिए, और यू विल गेट इसको, या यू विल स्कोर गुड मार्क्स एग्जाम्स में। डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में आप प्रिपेयर होते हैं, या ऐसे टाइप क्वेश्चंस में प्रिपेयर होते हैं, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फॉर्म होते हैं, इवन दोज क्वेश्चंस आर फ्रॉम, आर फॉर्म्ड, आई वुड से दैट फ्रॉम दोज कंटेंट्स which you have already studied or gone through. तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। So I'll see you in my next lecture of the development of Indian Constitution. Till then, I would say that please take care of yourself, enjoy yourself, and keep studying, keep doing hard work. Till then, सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, thank you very much.